You feel safe? I know they are constantly behind me, and I know they will watch this podcast also, and they're going to love it. If the man had a choice of a girl or a female dog, what do you think he would choose? BNS नया लॉ आया है जिसमें ट्रांसजेंडर और एनिमल का रेप वैलिड ही नहीं है. What are you saying? Samay Rana and Ranveer Allahabadia. Entire country के laws बन जाते हैं and all this happens. Media has actually been bought by a lot of and thank you so much for doing this. Heroes of animal welfare, they are scared. तुझे तो हर पोस्ट पे पैसा मांगना चाहिए. सरकार तुझे साल का 1.5 करोड़ देगी, आधा हमारा, आधा तेरा. Plus whatever dead bodies also that you collect, make sure you take out that this is a mafia that wants to sell dog meat to North Korea and China. हमने लाइफ स्टॉक बिल कैंसिल करवाया था. उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में ट्रक्स पकड़े गए हैं. There is nothing. She is ultimately beef. मोदी जी को आप कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हो? आप इस वक्त She is not just an animal rescuer, she is a warrior who fight on the street against cruelty, against inhumanity and against a system that refuses to care. Meet Manvi Rai, a fearless activist, a savior for stray animals, a guardian of humanity. From Canada's luxury to India's street, a life-changing decision. Manvi Rai's story is not just another activist journey. She was a successful entrepreneur, a well-established fashion designer, living a dream life in Canada. But one simple act, feeding a stray dog during the lockdown, changed her world forever. Today, she is not just a rescuer, she is a voice for the voiceless. She founded Udgam Charitable Trust, where over 100 rescued dogs, cows, and even a horse are now living a new life. A woman who sees what we chose to ignore. The dark reality she fights against doesn't only rescue animals, she exposes the ugly truths that the media hides and the system want to suppress. Fake NGOs, animal rapes, acid attack, mental sickness, government policies. A society that loves pets but calls street dogs a threat. Today we expose the scam, dissect the failure of system and ask the biggest question. Have we, a society, lost our humanity? This is not just a podcast, this is a revolution. Welcome to Let's Off Leash No LOL Junction, where truth is not silent but amplified, where activism is not just words but action. Meet Manvi Rai. Very good afternoon, Manvi ji. कैसे हैं आप? Good afternoon. Very well. Thank you so much for having me. I'm so glad you joined my show. This is the first episode of LOL Junction, Powerful Woman Pack. Thank you. My pleasure. So I always see Narangi and Power together. And if the name is Manvi Rai, no one can question anything else. I feel honored to hear that, and I hope I never let anybody's hope down. Absolutely not, Manvi ji. From Canada to India, what was that one defining moment when you felt this is my true purpose? It was honestly, I've said it before, and I keep saying it again and again. For me, everything was organic, and it was decided by God. Everything was, done, conspired by the universe. And pandemic happened. I was here to teach at NIFT, and NIFT ki classes khatam hui, and pandemic happened, the lockdown happened, and I couldn't go back. And so I just started feeding all the strays, not just dogs, but wildlife, cattle, जो भी दिखता था हम खाना खिलाते थे. And
what happened was one day, there was a case, there was a lactating mother, and she was unable to feed her babies. She was bleeding. And that really broke my heart. And I reached out to NGOs. We have 5 more NGOs within my area. Mm-hmm. And when I saw the response was horrible. They were not interested in helping the poor baby. And it was all about money. And it wasn't that I didn't want to pay money, but the sound of it was not nice, And so I just decided, I said, you know what? I'm capable. I'll help the child. And so I took her in. I rented a small place. And उसका नाम भी हमने मदद रखा कि आज इसकी मदद से शायद अब एक शुरुआत है और बच्चों को मदद मिलेगी. And that's how the journey began. So, I was an animal lover growing up, born into a dog lover family, but कभी सोचा नहीं था कि ये होगा, और शायद तब भी ना सोचती, but भगवान ने वो जगह बना दी. If not India, then what? I would have been in Canada. I would have been in Canada. In fact, you can say the last quarter of my life in Canada, I made it like absolutely beautiful. I think जिसकी लोग dream करते हैं. My summers were in Canada. I would do projects over there. My winter would be in India, snow के बिना. So I think लोग ईर्ष्या करते थे यार, तू बहुत lucky है. तुझे दोनों जहान के बेस्ट टाइम पे तू रहती है. सो आई थिंक वही लाइफस्टाइल होता अभी भी. Perfect. But you know that in this society we have that good girl syndrome. Of course, you will be knowing that you have seen much more than me. So your parents were against it initially. What did you tell them that what's the one thing people like do not know about you or misunderstood about you, or your parents initially was not supporting but now all are together? My family, I have the most amazing family, and I think every Indian girl should get parents like my parents. क्योंकि ये जो आज भी ये नारा चलता रहता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, Exactly, उसका exactly. कोई मायना नहीं है. Mm-hmm. बेटी बचाओगे ना तो बेटी को पंख दो, पूरी तरह से आजादी दो. और मुझे इसी तरह से शुरू से पाला गया है. Yes, when I took this step in pandemic that I'm going to sell off every bit of asset that I have, and I'm going to put it towards this animal shelter, and I'm going to live in a village after leaving Canada. And अकेली औरत एक गांव में रहेगी. मैंने इनिशियली अपने पेरेंट्स को बताया नहीं, बिकॉज आई फेल्ट दैट दे विल नॉट बी एबल टू डर जाएंगे. वो डर Exactly. जाएंगे यार ये क्या कर रही है, सब कुछ खत्म कर रही है. कि आई होप शी डजंट नीड अ साइकेट्रिस्ट. But I knew I had a vision, and I just decided that I'm going to do this. So after a little point of time, I broke the news to them and I told them that I live here. I have dogs at home and this is what I'm doing. So their initial reaction was they were shocked. But I remember my parents saying that we're very proud of you. जो तू कर रही है ना वो हम सोच नहीं सकते, और अगर तू गलत कर रही होती तो हम तेरे को डांटते या टोकते. तू कुछ गलत कर ही नहीं रही तो हम तुझे टोक कैसे सकते हैं. And they have always, my mother, my brother, my father, they've always said, the world is nobody to judge you. There is no failure in life. और तू वो करेगी जो तेरा दिल करता है, बिकॉज तू किसी का दिया नहीं खाती, तू अपने पैरों पे खड़ी है. एंड आई थिंक ऐसे पेरेंट्स सबको मिलने चाहिए. यस, एट द एंड इफ मतलब सबको ऐसा पेरेंट्स मिले, फैमिली सपोर्ट मिले ना, तो बहुत जन बहुत कुछ आगे बढ़ के कर सकते हैं. ये एक बिल्कुल, एग्जाम्पल है. because I have never been under the pressure that लोग क्या कहेंगे, ये तो लड़की होके ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती है. हमारे घर में रूल्स नहीं थे. My mother never made rules. She said that जब अपने घर में ही अपनी मर्जी से नहीं रह सकते तो फिर फायदा क्या. एग्जैक्टली. मैं थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछूंगी. एम आई इंडियन स्टिल? जब आप वहाँ पे रह रहे हो, आप चीज़ों को डे टू डे बेसिस देख रहे हो, बट बीन एन इंडियन, मैं वहाँ पली बड़ी हूँ तो मेरे को पता है
India calls itself a spiritual country, but Yes. yet it ranks among the worst in animal cruelty. Yes. So, can we say that has religions failed in making people kinder? Absolutely. Because I personally believe in these 5 years of working Mm-hmm. uh, for animals, for voiceless, that money is God. At the Mm-hmm. end of the day, पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है. Majority of the people working in this field are also working in this field क्योंकि बेजुबान की मिजरी से पैसा कमाना बड़ा आसान है. वो बोल नहीं सकते. ये बातें कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, ये सारी बातें जो है ना और कर्मों की बातें, ये आज किताबों में रह गई हैं, ये व्हाट्सएप मैसेजेस में अच्छी लगती हैं, ये इंस्टा रील्स में अच्छी लगती हैं, बट जब एक्चुअल ज़िंदगी जीने को आती है सड़कों पे, जीवन की कोई कीमत नहीं और सिर्फ बेसिक सोसाइटी के लिए ही क्यों होगा? आज तक जितनी सरकारें आई हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा है जानवर के लिए। अगर हम लोग बोलते हैं गऊ माता, चलो कुत्ते को तो हम भूल जाते हैं। Mm-hmm. हम गऊ माता बोलते हैं। गऊ माता की क्या कीमत है? मैं हमेशा ये वंडर करती हूँ दैट चलो जीते-जीते उसकी कीमत थी ही नहीं, बट जब गऊ माता मर जाती है, उसका सेंड ऑफ कहाँ होता है? कैसे होता है? There is nothing. She is ultimately beef. She is beef and India is the second largest exporter of beef in the world. So who Yes. are we fooling? हम किसको पूज रहे हैं? एक साइड हम माता बोल रहे हैं और एक साइड जब वो गाय दूध देना बंद कर दे तो उसकी कोई कदर नहीं है. सो ये उसकी हिपोक्रेसी कदर नहीं हुआ. है, नंदी की कदर नहीं है, शिवरात्रि ना. पे दूध चढ़ाएँगे, अ, बछड़ा पैदा हो गया, मार-मार के उसको बाहर निकाला जाता है गाँव हुँ. से ताकि माँ का दूध ना पी ले, क्योंकि वो हुँ. बिज़नेस खराब हो जाएगा। माँ भी यस. जब तक दूध देती है तब तक ठीक है, उसके हुँ. बाद तो कहीं हाईवे पे छोड़ दिया जाता है। एंड इस तरह से हर किसी के लिए बंदरों को पत्थर मारे जाते हैं। एक तरफ आप हनुमान जी, बजरंगबली बोलते हो, डॉग्स के लिए पशुपतिनाथ, कुछ बातें हम बहुत करते हैं। बातें करने में तो इंडिया बहुत शेर है। इंडिया यस. का तो बस चाहता है वो दुनिया के हर कल्चर के बारे में बात करता है, हुँ, हुँ, क्योंकि इंडिया को लगता है कि ओह! वी हैव जॉइंट फैमिली, वी हुँ. डोंट हैव डिवोर्स। It's all bullshit. Come to ground level, come to ground level, come and work on the streets. It's an eye opener. एब्सोल्युटली बिकॉज़ अभी भी देखा जाता है जैसे हॉर्सेस हो गए, एलिफेंट्स हो गया, कैमल्स हो गया, उनको एक मतलब वेडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है जस्ट बिकॉज़ वो रिचुअल है. और हाउ इज़ इट पॉसिबल कि It is 2025 not में भी. even connected to religion. Sorry, I'm cutting you, but it's not even connected to religion. जिस जमाने में घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी था साधन, तब हुँ. आप ये यूज करते थे। राजा महाराजा ऐसे जाते थे। आज भी ब्लाइंडली लोगों को घोड़ियों पे बैठना है। जब आप घोड़ी पे बैठते, माय गॉड, ट्रैफिक का आवाज, हुँ, हुँ. पटाखे उनके पैरों में बज रहे हैं, डीजे उनके कान में बज रहा हुँ, है हुँ. और घोड़ा वाला चाबुक मारता है। एंड में उसने जो कमाया वो भी किसी और की रोटी बनती है। हुँ, हुँ. So are we a very mindless and insensitive society? हुँ, Yes, we हुँ. are. हुँ, हुँ, हुँ. हुँ, एब्सोल्युटली. अब मुझे ऐसा लगता है आप बेटर बता पाओगे एज़ आप सड़कों में रोज रहे हो और आप रियल लाइफ ग्राउंड में काम किए हो. डू यू थिंक फीमेल फीडर्स आर मोर इनसिक्योर और मोर अनसेफ देन मेल और बोथ आर सेम? Both are same. When I get cases or I get Mhm, messages, mhm, boys are also harassed. The reason you see more cases for females, for mhm, women, is because in ratio, women mhm, feeders are more than men feeders. mhm, औरतें थोड़ा ममता का रूप थोड़ा ज्यादा वो है. mhm, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट men don't, बट इन mhm, नंबर women feeders उनकी तादाद ज्यादा है, इसलिए वो सुनने को ज्यादा मिलता है. mhm, एंड ये भी एक बहुत दुखद बात है कि पुण्य का काम करने के लिए आज बहू बेटियां तो भी सेफ नहीं है. hmm. I know of cases where mobs have gone and beaten women, Yes. and I've raised my voice for this, that okay, there is no animal law. I Mhm, understand you don't value life, but what about women?
women are not safe. At least come forward and get them justice. But it's such a joke because I've tried thrice to help cases, and the police mocks us. They make fun, and police doesn't want to do their basic duty of filing an FIR also. They mock us. Mocking for helping animals. Yeah, they're like, Jao. I mean, I know one case in Alwar and one case in Meerut where the police said, नहीं गए ना कुत्ते के खाना खिलाते हो पिटे हो ना, हम ऐसा केस बनाएंगे, ऐसी FIR दर्ज करेंगे कि तुम्हारे ऊपर केस आ जाएगा कि तुम्हारी वजह से इन कुत्तों ने लोगों को काटा है. This is our police. So now when people reach out to me कि ma'am please help, अंदर से I feel helpless. आई फील हेल्पलेस. मैंने क्या बताऊं, उनको लगता है कि ये इतने जानवरों की हेल्प करती है और इसने 2-3 केसेस की हेल्प करी है तो ये हमारी हेल्प करेगी. ये सच्चाई नहीं है. बट दिस इज वेरी डेंजरस. लाइक हम वर्ल्ड वाइड ये देखे हैं, दिस इज अ पैटर्न दैट इवन सीरियल किलर्स लाइक जेफरी डहमर और वहाँ हमने ऐसे देखे हैं पैटर्न्स जहाँ पे ये पहले एनिमल से शुरू करते हैं, रेप करना, उनको टॉर्चर करना, उनको मारना, उसके बाद दे टर्न टू ह्यूमन. वो तो सोसाइटी के लिए एक थ्रेट हुआ. I always tell people I have rape victims in my shelter. I have acid attack victims in my shelter. For rape victims, I always say that if the man had a choice of a girl or a female dog, what do you think he would choose? जो easily मिला उसने grab कर लिया. अगर उस वक्त आपकी बेटी गुजर, ये तो मैंने पुलिस वालों को भी बोला है कि इस कुतिया की जगह आपकी बेटी हो सकती थी. आपको शायद इस कुतिया के पैर छू के थैंक यू बोलना चाहिए. ये रेप हो गई, आपकी बेटी बच गई. ऐसी चीजें जब बोलो इनको अच्छा नहीं लगता. बट दिस इज सच अ हिनियस क्राइम. Psychological problem. They don't understand. They never understand this basic statement that forget the species. जो ये विकृत मानसिकता है जिसने ये किया है उसको टैकल करना बहुत जरूरी. अब ये BNS नया लॉ आया है जिसमें ट्रांसजेंडर और एनिमल का रेप वैलिड ही नहीं है. व्हाट आर यू सेइंग? ट्रांसजेंडर के पास ऑर्गन नहीं है. हमारे यहाँ पर बोला जाता है इतने सालों से इज्जत लूट ली. तो आर यू ट्राइंग टेल मी दैट इवन ट्रांसजेंडर्स डोंट हैव इज्जत? अगर आप इसको इज्जत मानते हैं तो इनकी इज्जत नहीं है. एनिमल का रेप होना इज नो लॉन्गर इंक्लूडेड इन BNS, and thank you so much for doing this. So many people have raised a voice that how can you do this? Rape is rape. But they say we don't consider it rape. Animals don't fall into this. And shamelessly they have said transgenders don't fall in it. How disgusting is that? LGBTQ, sorry. The whole community doesn't fall into it. And this is progressive or regressive? I think where country I is don't- going. This is our culture. This is like, It's India shining. It's India superpower. yeah, like I'm we have seen, in US that FBI tracks animal abuser because they often becomes murderer. Even most heinous killer Ted Bundy and Jeffrey Dahmer started by killing animals. And if this is the case, India keeps it, and they will be the future criminals. I don't know what the future is. Recently in Bombay, a 2-month-old puppy was raped. 2 months. And yes, but तस से मस नहीं हुआ कुछ भी. बड़े लोगों ने आवाज उठाई. बहुत सीनियर इंस्पेक्टर है मुंबई में, सुधीर कुडालकर सर, जया भट्टाचार्य, शी इज अ रिनाउंड एक्ट्रेस. बहुत कुछ किया. Everything lands on a deaf ear. So that is why people like me, suddenly we feel that what is the point of fighting these cruelty cases? यहाँ तो अंधे बहरे बैठे हैं और यहाँ तो इंसान की कीमत खत्म कर दी. LGBTQ कम्युनिटी के लिए कर दिया तो क्या ही सुनेंगे ये हम लोगों की. आगे ही हम इन लोगों के लिए जोकर ही तो है. एक एनिमल लवर जोकर है इन लोगों के लिए, पुलिस के लिए, लॉ एनफोर्समेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए. वी आर जोकर्स फॉर दैट. बट आई थिंक कि जो विल पावर आपके पास है, जो विल पावर, बिकॉज आई फॉलो सुधीर सर ऑल्सो, आपको या जया जी ऑल्सो. बट ये विल पावर अगर आप लोगों के अंदर से ही ख़त्म हो जाएगी, सो
generations are coming, they will not understand what is and for what we are fighting for. जब And मैं that किसी is को, why, या even if our voices are landing on deaf ears, even if we हम्म are, banging our heads against walls, we are हम्म not stopping. We will continue to keep raising our voice. We will continue to sensitize. We'll continue to, keep going. But हम्म yes, sometimes it's very disheartening for us या that where are we living? In what sort of a world are we living? हम्म So, not just for people as a society, when I said that money has become God, as a country also only becoming a superpower, is that our only agenda? Because अगर कोई भी अंबेडकर जी ने भी बोला था कि आगे बढ़ना है तो औरतों को सब प्रजातियों को साथ लेके आगे बढ़ना है ये हम्म प्रजातियां तो हम पे डिपेंडेंट है animals are dependent on us we are caretakers of these animals and we are moving forward destroying species is this like sometimes I say is this land going to become a graveyard क्या हम अपनी इमारतें इन लाशों पे बनाएंगे मे बी बिकॉज अभी ऐसे दुनिया आ चुका है जहाँ पे लाशें निकाल के इमारतें बन रही है, कितनी सारी बिल्कुल ग्रेवयार्ड में इमारतें बन रही है. सो यस पीपल हु आर ऑलरेडी डेड दे आर नॉट गेटिंग रेस्पेक्ट. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ह्यूमैनिटी ग्राउंड किस लेवल पे जा चुकी है? Yes. इट्स सैड. We could not control our population. And for that, we are torturing every species. Whereas we understood, I'm sure you've also seen this growing up, Doordarshan pe, बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे, la 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 la. Nothing happened. But we are expecting animals who don't go to school, who don't understand anything, कि उनकी population control हो जाए. क्या दिमाग है इंसान का? पॉपुलेशन से ही मुझे जस्ट अभी मतलब हम जब रिसर्च कर रहे थे तब कुछ चीज़ें हम डीप डाइव रिसर्च किए, उसमें पता चला कि लाइक गवर्नमेंट फंडिंग देती है डॉग स्टेरिलाइजेशंस के लिए, बट Yes. कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है. देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी ऑन हाउ इट इज स्पेंट एंड वेयर इज द मनी गोइंग. So, there are a lot of haters, animal हम्म haters, especially हम्म dog haters in India. Growing up, what I remember is कि हम्म आपको एक सड़क पे एक या दो कुत्ते दिखते थे जो हम्म नहीं भी पसंद करते थे वो उनको बर्दाश्त कर लेते थे. हम्म अब आज की डेट में जब इतना हेट है डॉग्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा हेट है उसके पीछे दो रीजंस हैं. वन इज दैट yes the population of dogs has increased in the हम्म sense I think 2016 में तकरीबन 1.5 से 2 लाख कुत्ते थे सिर्फ दिल्ली में. आज दिल्ली में 11 लाख से ऊपर कुत्ते हैं सड़कों पे. पैसे गए हैं सरकार की तरफ से. We have 13 units in Delhi itself to do these sterilizations. Other than these 13 units, now a lot of जो नागरिक जागरूक हो चुके हैं वो भी अपनी तरफ से भी अपनी जेब से करा रहे हैं अपने एरियाज में अपनी कॉलोनीज में. एनजीओज आ गए हैं, हम्म caregivers आ गए हैं. A lot of people are working on this. So it's only because of us that this population is sort of being controlled. हम्म The Zimmedari of sterilizations has been given to municipality in Delhi. All over India, it's municipality. हम्म So इनके ऑपरेशंस को म्युनिसिपैलिटी का काम होता है कचरा साफ करना. तो ये कचरा है. ये तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन किस कचरे तरह से ये सर्जरीज और ये यूनिट्स चलते हैं. ये गंदगी है, बीमारियों का ढेर है. बिना एनेस्थीसियास के बच्चों को काट के ऑपरेशन करते हैं. रेबीज वैक्सीनेशन का पैसा मिलता है. इंडिया अभी तक रेबीज मुक्त नहीं हुआ. एंड कहाँ जा रहा है ये सब कुछ? इनको बहुत बढ़िया से पैसे मिलते हैं. और ये मुझे मेरे काम के शुरुआत में ही बहुत बढ़िया से पता चल गया था that this is a mafia. Just like any other field in India, animal welfare is not free from corruption, fraud, bureaucracy. So I was new from Canada. I mean, you can just go to my first post and you can see I never used to ask for donation and I still try not to ask. So I was called upon by some heroes of animal welfare who've been around for a very long time. People look up to them. And I was told that, you're doing wonderful work, but you're wasting your posts. तुझे तो हर पोस्ट पे पैसा मांगना चाहिए और आधा तेरा आधा हमारा. उसके बाद मुझे सजेशन दी गई that, why don't you run
an MCD unit for sterilizations. सरकार तुझे साल का 1.5 करोड़ देगी, आधा हमारा, आधा तेरा. तेरे को रेबीज वैक्सीनेशन के पैसे मिलेंगे, आधे तेरे, आधे हमारे. तेरे को per surgery, all the number of surgeries you do, तेरे को you'll have to get a deep freezer. I'm learning this from heroes that I look up to. You get a deep freezer and you have to store the organs of the female and the male, testicles or wo. The officer would come, he would count, and per organ you are going to get 1200 rupees. आपका खर्चा धागा मिला के और सब खर्चा मिला के 700 रुपए होएगा. 500 you give us. Plus whatever dead bodies also that you collect, make sure you take out that organ. उस वक्त तो मैं बहुत नई थी. मैंने हाथ जोड़ दिए थे and I just made up this bahana that I'm too new. And this is just the beginning for me. I don't think so. I'm right now ready to handle such a huge responsibility. But that was the day I realized I'm in India and जिनको आप heroes भी मानते हैं. Yeah. I mean, animal hater क्या ही करेगा जब animal welfare के अंदर लोग बैठे खा भी रहे हैं और गलत. आप खा भी रहे हो. जैसे सपोज आप आए हो मेरे पास हॉस्पिटल है. मैं आपको बिल भी बना के दे रही हूँ और आपकी मौत भी कर रही हूँ. तो ये कहाँ का इंसाफ हो गया? एंड भाई फॉर खा लो. दोज जो बोल नहीं सकते, एंड दिस इज द लोएस्ट ऑफ पाप. इससे गंद कुछ नहीं हो सकता कि एक बेजुबान के जख्मों के पैसे कमा रहे हो आप. इससे गंदा क्या हो सकता है? ये रोटी कब तक हजम होगी? ये कभी हजम नहीं होगी. सो दैट इज वन. ये एमसीडी का. एंड इसके अलावा भी लाइक आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू. This hate. So when they are doing this, they are only making money and making their bank balances, and the population of dogs is increasing. The hate is increasing. So they are responsible for the hate. And the other agenda for years, it's been about 3 or 4 years, India wants to include dogs and cats in livestock, export dog meat and cat meat. So इसके पीछे कुछ politicians, media houses हैं. Why is media always spreading dog hate? But they will never tell you what is happening to the women, to dogs. I mean, इस दिवाली पे मेरे एक अकेले एनजीओ के पास 2 कुत्ते आए जिनकी पूंछ पे बांध के पटाखे जलाए गए. So why is media not covering this? Why is Indian government not having a CBI inquiry on these MCD units? मुझे तो अब ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट इस पे भी CBI भी मिल जाएगी साथ में. मैं सच्ची बता रही हूँ. मुझे तो ऐसे लगता है पता नहीं किसी लेवल के करप्शन चल रहा है. काफी, क्योंकि अभी सी इफ मीडिया वांटेड टू डू समथिंग they can do. I don't know, you have Well, media heard has or played not. a very negative role. Media has actually been bought by a lot of, and there are many people who've tweeted about it. Many senior people have tweeted about it on Twitter that this is a mafia that wants to sell dog meat to North Korea and China. It's a literally a biggest scam. And आपको हम पता लड़े होगा, थे. हमने लाइव स्टॉक बिल कैंसिल करवाया था. ये लाइव स्टॉक बिल पास होने वाला था. इसको कैंसिल करवाया गया है. तो यू थिंक जिन पॉलिटिशियंस और जिन मीडिया हाउसेस को इसमें पैसा दिख रहा है वो अभी हार मान गए? वो अब लगे रहेंगे. वो जब तक वो कुत्तों के लिए हेट स्प्रेड करते रहेंगे जब तक उनको परमिशन नहीं मिलेगी. और ट्रक्स और मीट तो अभी भी एक्सपोर्ट होता है. उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में ट्रक्स पकड़े गए हैं with dogs stuffed into them. and it's not possible कि गवर्नमेंट को नहीं पता. सिस्टम सब को है. बिना जाने कुछ हो ही नहीं सकता. पता नहीं कहाँ. बट मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, आई होप आपके माध्यम या किसी माध्यम के थ्रू मैं को आई मीन आई रियली फील दैट because I've seen Modi ji. He is a genuine animal lover. He's a genuine animal lover. And I know a lot of people who tell, little stories about him, how he's with dogs and how he's with people, cows and whatever animals. I feel that he's not aware. He's not aware these voices haven't reached him. And I feel that I feel he's my
he's the only hope left for animals right now. So I if personally feel that. so okay, आज इस LOL जंक्शन के थ्रू, कि बिकॉज इट्स अ फर्स्ट एपिसोड, ओपन प्लेटफॉर्म ग्लोबली, आई वांटेड टू गिव यू, आपको अगर 5 मिनट्स मिले मोदी जी को कुछ बोलने के लिए, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं 5 minutes उनके आमने सामने फेस टू फेस आप सोचो कि मोदी जी को आप कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हो, एंड विल मेक श्योर कि हम हर जगह से ये मैसेज उन तक पहुंचा पाए। मैं उनको यही बोलूंगी कि आप इस वक्त इस देश के पिता हैं, और सिर्फ हम इंसानों के पिता नहीं हैं, इन जानवरों के भी पिता हैं। और भगवान ने हमें राम मंदिर स्थापित कर दिया, थैंक यू सो मच, मगर उसके अलावा राम राज्य लाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मंदिर से नहीं आएगा। और ये प्रजातियां ये हम पे निर्भर हैं, हम इनके केयर टेकर्स हैं, और हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट बनानी है विच इज अ विन विन, नॉट जस्ट फॉर डॉग्स बट फॉर ह्यूमंस एज वेल। जो लोग जानवर से भी प्रताड़ित फील कर रहे हैं, आज हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, उसको नेदरलैंड्स ने पूरे दिल से फॉलो करा है, और सड़क पे आज एक भी स्ट्रे एनिमल नहीं है नेदरलैंड्स में, और नेदरलैंड्स कंप्लीटली रेबीज मुक्त है। और अगर मोदी जी हमारा साथ देंगे, इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को हम लोग फॉलो कर सके अब से अपने एमसीडी यूनिट्स में, और इसके ऊपर एक कमिटी बिठाई जाए जो इसको एग्जीक्यूट करे ऑनेस्टली, तो हम लोग अगले 5 साल के अंदर इंसानों का भी भला कर देंगे, जानवरों का भी भला कर देंगे। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, दिल्ली मेट्रो जो बनी थी, इतनी प्रेज हुई थी कि दिल्ली मेट्रो एक ऐसी चीज है जो 1 रुपए की भी चोरी पे नहीं बनी। तो इंडिया में अगर ये हो सकता है तो जानवरों का काम भी हो सकता है। एंड इट इज वेरी सिंपल, बस उस पॉलिसी को फॉलो करना है, करप्ट लोगों को बाहर निकालना है, एंड इंडिया विल बिकम क्लीन, ब्यूटिफुल रोड्स, without stray animals and in an humane way। हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, हमें अपने देश को पाप की लाइंस पे खड़े करने की जरूरत नहीं है, एक ग्रेवयार्ड पे खड़े करने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य के रास्ते से ना ही इंसान का बट जानवर का भी भला कर देंगे। एक बार मेरे को मिलके तो देखिए, 5 मिनट क्या 2 मिनट दीजिए मोदी जी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। सो मोदी सर, आप, आई हैव मेट यू, अलहन मोदी, आई हैव मेट यू, आई हैव सीन यू फ्रॉम, लाइक आई कैन नॉट बिलीव कि मैंने आपसे मिला है, मैं आपसे बहुत आमने सामने मिला हूँ, एंड आई नो अगर ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है, सो आई विल रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि एक बार आप मानवी जी से मिलिए और बात कीजिए। आई नो कि इफ बिलेनियर्स लाइक रतन टाटा केयर अबाउट स्ट्रे डॉग्स, उन जैसे 1 2 3 4 नहीं, सब अगर ऐसे बन जाए ना, तो हमें वापस कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं होगा। I always say, he's my only hope and he's also my faith. अब And I really feel I he have doesn't know what's seen happening. Modi ji from so close, and when he tell anything, no, I like, it's a goosebump moment, because जब वो दुबई आए थे, वो अलहन मोदी में, अबू धाबी में एक बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनाए, फिर बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किए इंडिया की तरफ से, यूपीआई और ये सारे। सो वी फेल्ट सो प्राउडली कि हम जब सुन रहे थे सब ग्रोथ के बारे में, मुझे भी एग्जैक्टली वही लगता है जो आपको लगता है। ही डू नॉट नो कि अंदर इतनी कुछ चल रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स ही हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, ही हैव सो मेनी थिंग्स टू गो थ्रू, बट यस, विल मेक श्योर कि ये मैसेज उनको उन तक पहुंचे। उनको बहुत सारी माओं की, बेटियों की बहुत दुआ मिलेगी, बिकॉज हम जो जीवन बिताते हैं रोज, हम्म, इनको बचाने में, इनको खाना खिलाने में, हम्म। बहुत बहुत कठिन है ये जिंदगी। तो जब हम लोगों की आवाज उन तक पहुंचेगी और बेटियों का भी भला होएगा और मूक प्राणियों का भी भला होएगा, तो दुआएं खाली नहीं जाएंगी। होपफुली लेट्स डू दिस, हम कर सकते हैं, हमारी वॉइस में उतनी ताकत है कि हम लोग करेंगे।
ये विश्वास से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि इंडियाज गॉट लेटेंट जो शो आ रही थी, समय रैना एंड रणवीर इलाहाबादिया, एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग देम कि वो लोग जो बोले हैं बहुत अच्छे बोले हैं या बुरा बोले हैं, दैट्स देयर प्राइवेट शो, कैसे लीक हुआ क्या हुआ, बट अगर उस चीज के लिए एंटायर कंट्री के लॉज बन जाते हैं एंड ऑल दिस हैपेंस, तो जब इतनी हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं तब कहाँ थे ये लोग? वेयर वाज द मीडिया, वेयर वाज द पुलिस, मिनिस्टर, सारे स्टेट कंट्री सब एक साथ हो गए, मतलब सीरियसली इंडिया हैव, मतलब इतने सारे अभी सारे पॉलिटिक्स पार्टी सब मिल चुके हैं। सब उस वक्त सब अपने इंस्टा रील्स भी बना रहे, हाँ सब लोगों को दैट फेम चाहिए था। वो कहते हैं ना, बहती गंगा में लोटे भरने सब आ हाँ, गए। मतलब उड़ता हुआ सूरज को सब सलाम करते हैं, एंड द मोमेंट दे विल सी द लूप होल्स, सब गिद्ध जैसे एकदम मंडराना शुरू। एंड तब जब भी आप मुझे ये बोल रहे थे बीफ का इनका, आई एम शॉक्ड कि कहाँ है ये लोग, ये मीडिया कहाँ है जब इनको नहीं दिख रहा ये सारी चीजें, चिल्ला चिल्ला Yes, के जो ये बोलते हैं, प्राइम टाइम शोज चलते हैं। मैं कभी कभी मेरे साथ तो कम होता है, बट जब ये चल रहा था ना कि अरे ऐसी भाषा यूज कर ली, आई हम्म, वाज थिंकिंग अबाउट द ट्रोलर्स। हम्म, Ever seen the language the trollers use? या Even for a person like me, हम्म, 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 एक माँ के लिए आप समय रहना और उसके लिए तो बोल रहे हो, आप हम्म, कभी जाके देख किस तरह की भाषा, कितनी गंदगी बोली जाती है। और जब लोग एक थ्रेड पे शुरू होते हैं, हम्म, माय हम्म, गॉड, रियलिटी बाहर आती है। हम्म। So that's why I had no reaction. I was like, why, why these two are doing for fame? Um, मतलब इतना कुछ चल रहा है इंटरनेट पे। अभी सडनली अभी नाइव और सडनली woken up. एग्जैक्टली, और ये इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ कि कुछ नया है, ये तो होते आ रहा है। और जब इतनी हीनियस क्राइम्स और इतनी फास्ट फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट तक का बेंच बैठ गया एंड एवरीथिंग, देन हमारे इट मीन्स कि हमारे लॉज एंड कानून्स एंड फास्ट ट्रैक सब कुछ है, बट उनके हिसाब से उनको जो प्रायोरिटी देना होगा तब होगा, नहीं तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ओके, और अगर अगर हम आप चाहें तो मिलके जब आवाज उठाते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। या तो ये आवाज मिलके अगर लोग जानवर के लिए उठा ले तो कितना अच्छा होगा। वो सोचेंगे भी नहीं, मुझे नहीं, अ, आप मानोगे नहीं, आई एम द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट एनिमल पॉडकास्टर। सो बहुत सारे ऐसे जगह हुआ है जब लोगों ने मुझे कॉल बैक किया कि एक्सक्यूज मी, व्हाट एनिमल पॉडकास्टिंग, व्हाट्स दैट, बोले क्यों, व्हाई, इफ वी हैव बिजनेस पॉडकास्टिंग, फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, सो मेनी थिंग्स, व्हाई नॉट एनिमल पॉडकास्टिंग? उसके एब्सोल्युटली। लिए एक डेडिकेटेड प्लेस क्यों नहीं होना चाहिए? Purini, concept is good, but we are listening for first time. Like, yes, that's the problem. You people are not concerned about that part. किसी को And कुछ God पड़ी ही bless नहीं you है for that. God bless you for starting this. कि We need more and more voices and podcasts and shows and movies in support of these animals. We do. Thank you for having this podcast. थैंक यू कि आप बहुत जनों को मोटिवेट कर रहे हो कि रेस्क्यू करना इज नॉट द सॉल्यूशन, उसके बाद उस सिचुएशन से निकालना, स्ट्रीट पे आके रेस्क्यू करना, इट्स अ बिग डील। मैं सोशल बहुत। मीडिया पे आई इसीलिए थी हम्म, इनिशियली। रेस्क्यू तो शुरू कर दिया था, हम्म, बट my right hand, my manager Keshav, हम्म, he used to always say that, मैम देखो ग्रुप्स के ऊपर सब इधर से उधर सर्कुलेट कर रहे हैं मैसेज, हम्म, and most of the women are saying, how can I handle it? हम्म, I need an ambulance, I need a rescuer. And he said, मैम आप सड़कों पे भाग रहे हो, कुत्ते उठा रहे हो, बिना डर के, जाल है, एम्बुलेंस भी चला रहे हो, you are a source of inspiration. You हम्म। should come on social media. And that's how my journey began on social media. He said, come and show women that they can rescue animals without the help of men. And that's how this journey Absolutely. began of social media. Absolutely. Woman,
I believe women can do anything if they have that willpower. Most बिल्कुल. strongest I woman can think do a woman anything. is I think a woman is a better rescue. I mean, no offense meant to any Hmm, of the men, but एक औरत के अंदर ममता भी है और शक्ति भी है. hmm, hmm, She's a combination. She's a combination of two of these beautiful um, traits, and she can do it. I mean, I don't go about like MCD and गलों में फंदे डालना, टांग से hmm, उठाना, इस तरह फेंकना. मेरी कोशिश पहले होती है प्यार, गोद में hmm, उठा लूं. अगर hmm, गोद में नहीं उठा पाती तो जाल से, और जाल के साथ भी हम लोग बहुत आदर सत्कार के साथ लेके जाते हैं. hmm, hmm. So a woman can do it. We don't have to rely on a man for anything, I think. God has You just made feel us. safe. Sorry? You feel safe. Absolutely. Absolutely. Because as I said, this is the way I've been brought up. I've Hmm, not been brought up to be scared, to be fearful of anything. hmm, I mean, as I said, I live in a village. I feel safe. Are you talking about the mafia? hmm. Yeah. Um, I know they are constantly behind me, and I know they will watch this podcast also, and they're going to love it. बट डर के कैसे जी सकते हो? और अगर मैं बेजुबान का भला चाहती हूँ, Hmm, और अगर मैं बेजुबान की आवाज हूँ, तो आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी. अब चाहे 4 दिन बचे या 4 साल बचे या 40 साल बचे, hmm. जीऊंगी तो मैं एक के लिए, और देखा जाएगा. आई डोंट फील स्कैर्ड, बट आई नो दैट दे आर स्कैर्ड ऑफ मी. They're scared, but threatening नहीं लगती. You don't feel threatening. कोई harm हो सकती है. मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो मेरी Hmm, बहुत बड़ी ताकत है. hmm, बहुत बड़ी ताकत है. एंड ये ताकत मैंने महसूस करी थी जब मैंने एक क्रुएलिटी केस हैंडल करा था. 4 कुत्तों को गाड़ी में से छुड़वाया था. hmm, मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली की जिंदगी इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया था. हमें बहुत तंग किया था इस माफिया ने. एंड आई मीन आई एम ऑन नो एनिमल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स. आई एम नॉट देयर. hmm, But people started sending me screenshots and hmm, voice notes of what was going around in the city against me. It became horrible. I mean, they decided things like that they're going to plant dead bodies behind my shelter to prove that after the video, I'm only a social media influencer. hmm, And after the video, I kill dogs. They would plant expired drugs into my shelter. They would get me hit by a car. I'm this self-proclaimed guru जो भगवा पहन के बोटियां चबाती है कुत्तों की. They just they really fell low. They stooped really low, and I hmm, just मेरे दिमाग में ये आया, and I came live. I came live and I told people the truth that I'm being harassed, my family is being harassed, hmm, and I'm leaving all the proofs with my mother. If something happens to me, the proof is with my mother. hmm, Immediately, within seconds, I started getting messages from my supporters that, ma'am, वो सारे लोग जाके अपने messages delete कर रहे, groups delete कर रहे, अपने voice notes delete कर रहे. तो मेरी ताकत इन बच्चों की दुआएं है, hmm, मेरे कर्म है, ऊपर वाला जानता है, मेरी एक एक सांस की खबर है. और तीसरा, ये जो अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट मुझे लोगों से मिल रहा है ना, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है. उस दिन लाइव आने के बाद यू शुड हैव सीन, एंड आफ्टर दैट देव बीन क्वाइट. हिम्मत नहीं हुई इनकी वापस मेरे को तंग करने की. कोशिश करते हैं, बट बहुत ओपनली आके तंग नहीं करते, बिकॉज इनको पता है सोशल मीडिया पे आज अगर बोल देगी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, वीडियो के लिए काम करती, वीडियो बना दूंगी. जनता जनता मेरी वीडियो जनार्दन. मेरी वीडियो से डरते हैं. हाँ, जनता से डरते हैं. और मेरा सारा काम 100% ट्रांसपेरेंट, हम्म, 100% ट्रांसपेरेंट है. मैं आपकी आंखों में हूँ. हम्म, हम्म. अब ये भी तो है ना कि अच्छा, अगर किसी को लेजिटिमेट एनजीओ के बारे में पता करनी है, हेल्प करनी है, तो कोई कैसे पता करेगा? जैसे नॉर्मल इंसान हम लोग, चलिए हम आप हो गए, हम लोग रेस्क्यूअर्स, एनजीओ, ये सारे में ही उलझे रहते हैं, काम करते हैं. बट नॉर्मल सोचो कोई कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद या
anyone can feel it कि I wanted to get in touch, I wanted to know the legitimacy, because आपके नाम पे भी कितने fraud, then you have to come out and say कि this is the fraud thing. How people Yes. can understand and know that this is the legitimate one? First of all, it's going to sound very philosophical, but I mean it from my Mm-hmm. heart. Mm-hmm. When God gives you a situation of Mm-hmm. helping a life, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं। आप पहली कोशिश करिए, चाहे काम पे 10 मिनट लेट पहुंच रहे, 1 घंटा लेट पहुंच रहे, चाहे एक दिन 500 रुपए कम कमाइए या Mm-hmm. कुछ भी हो, ट्राई एंड गो above and beyond an extra mile for that voiceless, because God trusted you. He Mm-hmm. put that situation in front of you because he trusted you. Mm-hmm. You're not going to lose much. आप सालों की जिंदगी में एक दिन किसी के जीवन के लिए आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप ले लिया, एक डिटूर ले लिया, कोई बहुत नुकसान नहीं होगा आपका। आप Mm-hmm. कोशिश करिए, आप एनजीओज के पास ना जाइए। दो तरह के एनजीओज हैं, एक जो बहुत जेन्युइन ऑनेस्ट काम कर रहे हैं एंड दे आर ओवरलोडेड विद वर्क। सी एट द एंड ऑफ द डे एक लिमिटेड जमीन है, एक एम्बुलेंस है, इतने पैसे हैं, हम भी उतना ही कर सकते। आज अगर 100 एनजीओ हैं और 11 लाख कुत्ते हैं, हम नहीं कर सकते, हम आपके बिना नहीं कर सकते। और कोशिश करिए एनजीओज के पास, अगर एक जानवर ठीक होके, चाहे शुरुआत तो मैंने भी जब मदद पहली डॉग ली थी तो मैंने अपने घर के टॉयलेट से शुरू करा था। कोई पहले दिन पे ही मुझे लैंड तो मिल नहीं गया था, मगर वो मेरे दिल की इच्छा थी कि मुझे करनी ही करनी है इसकी मदद, तो आई पुट हर इन द वॉशरूम। Life is more important because I had 2 dogs at home and they would have not accepted her. So कैसे भी करके उसे करा, 5 दिन के अंदर जगह ढूंढी। So पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि जगह दिल में होती है, घर में नहीं होती। और जो भी खर्चा आप डॉग पे करेंगे, एक चीज याद रखना, आपकी किस्मत का आपसे कोई नहीं लेगा, वो जानवर अपनी किस्मत का ही ले रहा है आपके थ्रू। So try and help, go an extra mile as much as you can. And if the dog can become healthy and can be released back to the spot, please do that. Do not jail an animal for small things. Do not go to NGOs. And if the child has become paralyzed or blind, or a situation where the child cannot survive on the streets, then please Google search, see the reviews, talk to people, and now you have everything on social media. Look at them, study, understand. Are they, how, what is the, and जहां भी छोड़ने जा रहे हैं, जहां भी छोड़ने जा रहे हैं आप डॉग को, एक बार उस फैसिलिटी को अंदर से देखिए। Ask them, what medical help do you provide? Where is your para-vet? Where is your vet? Do not leave a child with, another 100 animals and they don't have medical help. बदबू आ रही है, सुसु पॉटी में पैरालाइज बच्चे इधर से उधर रेंग रहे हैं, तो इससे अच्छा तो आप उसको कहीं अपने आसपास कुछ आश्रय दे दीजिए, मगर ये शेल्टर्स नहीं होते। दिस इज नॉट वेलफेयर। सो help if you can. Please go an extra mile. You're very blessed if God is giving you this opportunity. If the situation becomes this, that you can no longer board the child and the child is unable to live on the streets, please read reviews, look at that Insta handle. Once you decide which NGO, please visit the place inside. Are they only shams, money making shams, or there is love and dignity in that place? We are all wise and I think हम लोग एक कॉल ले सकते हैं, हमें पता चल जाएगा अंदर जाके। So please, for everyone who's listening this podcast, for all the audiences, if you want to get in touch with Manvi ma'am, or you want to do anything charity for anyone, Yes. any NGOs, anything, you can go see, check and give. मानवी जी, आप अपना चैरिटेबल ट्रस्ट का पूरा नाम एक बार बताओ कि लोगों, पीपल कैन नो कि वो ट्रैप में ना फंसे। जी, हमारी संस्था का नाम उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट है एंड हम लोग एक पर्टिकुलर तरह से काम करते हैं। दिल्ली बहुत बड़ी है, तो आज अगर मैं साउथ दिल्ली में हूँ तो मेरे लिए एक एम्बुलेंस के संस्था चलाने के साथ, people understand this, that I run an NGO and I have a family also. So एक लिमिट का ही काम कर सकती हूँ। तो I have made a very nice situation, मतलब I've Organized. adopted 9 villages. I've adopted 9 villages
मैं ये इसी दायरे, 1 से शुरू हुई थी, 9 तक पहुंची हूँ। भगवान करे 9 स्टेट्स तक भी चली जाऊं, बट अभी मेरी कैपेसिटी 9 गांव की है. आई एम हैंडलिंग दैट, and I help smaller NGOs also who are doing honest work. But because everything is so expensive, so whatever facilities my NGO can provide, I'm supporting younger NGOs and volunteers and caregivers. But if I am working towards south of Delhi, I'm really sorry, I cannot come to East Delhi, North Delhi, and West Delhi to rescue your cases. Let's be mindful कि एक इंसान पूरी दिल्ली को कवर नहीं कर सकता. तो this is my area where I work, my villages. And I also work for people who are below poverty line. I work for people below poverty line. और वैसे सारा डिटेल्स मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शंस में भी दे दूंगी. मानवी जी, वी टॉक्ड अबाउट एनिमल, वी टॉक्ड अबाउट सोसाइटी, गवर्नमेंट, एवरीथिंग. नाउ आई पर्सनली एज अ फीमेल wanted to talk to a female, a woman. आज मैं मानवी जी से बात करना चाहती हूँ. जरूर. सो मानवी जी, मुझे आप एकदम प्योर सच बताइए कि हाउ हैव यू बीन इन लव, यू फेल इन Of लव? course, of course. I've always been in love. देखो, एक चीज तो है, कोई माने या ना माने, बट मैंने शुरू से एक चीज तो बोली है, माई फर्स्ट एंड फॉर एवर लव इज गॉड. I'm obsessed with him. I love him. Look what he's done to my life as well. I think I have one of the most beautiful lives because I live in an atmosphere of unconditional, genuine love. So I live what's I your live future very planning? What's your huh? future planning? My future plan, my life is dedicated to animals. My future plan is to expand and expand and expand as many animals we can help, but at the same time, somehow meet Modi ji and tell him that let's bring their dignity back. In जानवरों की भी एक dignity and they have the right to live in peace. And a lot of wrong has been done to them for centuries untold. Let's undo it now. Let's redeem ourselves. सच मेरा ये जिंदगी का एक ही एजेंडा है कि मैं इनकी डिग्निटी वापस लाके. So you don't want to go for that stereotype woman life, शादी, बच्चे, परिवार. है ना बच्चे, आज 100 है, वादा करती हूँ आपको कुछ सालों में 1000 बच्चे भी होंगे. नहीं, वो नहीं चाहिए. आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड. आज अगर मैं अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने लग जाऊं, मैं भारत देश में पैदा हुई हूँ, मैं उसे एक ब्लेसिंग मानती हूँ. मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ, मैं उसको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानती हूँ. मैं इतने सारे धर्मों के साथ पली बड़ी हूँ, क्रिश्चियन स्कूल में बड़ी हुई हूँ, मैं इसको सच में एक ब्लेसिंग मानती हूँ. भगवान ने मुझे 2 जहान दिखाए हैं. एक माँ जिसने मुझे पाला, एक माँ दूसरी जिसने मेरे को यू नो लाइफ के ऐसे, कनाडा में ऐसे लाइफ के लेसन्स मिले. आई बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. व्हाट एल्स डू आई वांट? आई हैव द मोस्ट doting brother. I have the most loving brother. He's like a father to me. I have such a beautiful team of sevadars. I'm sure you can see in my videos. Yeah. मेरी टीम भी मेरे बच्चों की तरह. कोई कमी छोड़ी ही नहीं ईश्वर ने, कुछ कमी नहीं छोड़ी. और अगर मेरे जैसे लोग आज वापस ना दे सके तो फिर तो लानत है हमारी जिंदगी पे. So this life is all about giving back, and only mostly to animals. The art of living is the art of giving. मेरी अपने लिए अब कोई needs नहीं है, मेरे कोई demands नहीं है. And जितना है बहुत बढ़िया है. जो मिलेगा अब जानवर के लिए. So how do you want the world to remember you? Mother. I think as a person who tried to do justice to whatever is written in Bhagavad Gita, whatever is written in the Bible, whatever is written in Guru Granth Sahib, Quran, जो भी ये सारे स्क्रिप्चर्स हैं, कि एक ये औरत थी जिसने कोशिश करी, पूरे दिल से कोशिश करी उस रास्ते पे चलने की. एंड शी ट्राइड एवरी सेकेंड ऑफ हर लाइफ टू बी काइंड, टू स्प्रेड लव एंड डू व्हाट इज रिटन. सिर्फ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जी के नहीं गई, अपनी जिंदगी में अमल किया है. मुझे इस तरह से याद करें और कुछ नहीं. Amazing. Goosebumps.
मैंने रिसर्च के टाइम आपकी काफ़ी सारे सुंदर पिक्चर्स देखे हैं कनाडा के, न्यूयॉर्क एंड ऑल दोज़ लाइफ एंड इट्स एन इंस्पिरेशंस फॉर मी टू कि लिपस्टिक, मेकअप, ग्लैमर, लाइट सब जो अभी आज की जनरेशन्स बोलते हैं ना, जनरेशन्स जेन ज़ी, जेन अल्फा, डिंक लाइफ, किड्स ओवर पेट्स ओवर किड्स एंड ऑल, आप जी रहे हो वो लाइफ। वैसे 2 चीज़ें बोलना चाहूँगी। मुझे पता था आज फेस टू फेस आपके साथ बैठना एंड यू लुक गॉर्जियस, तो लिपस्टिक तो आज लगाई है, ठीक थैंक यू। और दूसरा चीज़ आई वांट पीपल टू नो कि मैं कभी-कभार तैयार होती हूँ। आई डू गो फॉर वेडिंग्स बट जब बहुत ही नेसेसरी हो जाती हूँ, मैं तैयार होती हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप, ज्वेलरी पहनती हूँ। बट हाँ, वैसे बच्चों ने मुझे बड़ा अच्छे से मुक्त कर दिया। मुझे जीते जी ना बड़ी सारी चीज़ों से मुक्ति दिला दी है बच्चों ने। अब यही नाइट सूट है, इसी में रेस्क्यू करते हैं, इसी में जाते हैं। आप जैसे आप और मैं इकट्ठे पार्टी पे जाएँगे, मुझे तो आके मुँह भी नहीं धोना, ज्वेलरी भी नहीं उतारनी, जैसे है वैसे सो गए डॉग्स के साथ, सुबह उठे फिर काम पे चले गए। तो उस तरह से बच्चों ने लाइफ ईज़ी कर दी है मेरी। अमेजिंग, अमेजिंग। में एंटायर पॉडकास्ट पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गई। एक जर्नी हमने आपके साथ जिया है एंड आई होप जितने भी चीज़ें आपने बोला है ग्लोबली मैं सबको ये बात पहुंचा पाऊँ बिकॉज इट्स अ ह्यूज ऑनर टू हैव यू ऑन दिस शो। एज अ वुमन आई फील प्राउड कि आई एम रिप्रेजेंटिंग यू, मानवी राय, दी मानवी राय। A country's greatness is judged by how it treats its animal. Mahatma Gandhi. And injustice ऑनर anywhere is a threat to justice everywhere. Martin Luther King Jr. And then I heard Manvi Raiji, where she said, remember me as a mother. And trust me, this is a moment where people will remember you as a mother. इतने बड़े लोगों के साथ मेरा नाम शामिल करा, आई फील ब्लेस्ड, आई फील ऑनर्ड। थैंक यू एंड एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट, आई से इट अगेन, आई नेवर लेट एनीवन डाउन। बहुत से लोगों की होप बन गई हूँ, बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन हूँ एंड भगवान हमेशा ताकत दे, हिम्मत दे, सही रास्ते पे ही रखे, कभी कोई गलती ना हो। And please, everyone, start respecting your native breeds, your voiceless children. Start adopting them and start understanding them that they are dependent on us because they don't go to school, they don't earn money. हम ही हैं उनके सब कुछ, तो उनका साथ ना छोड़िए। Mhm. Thank you so much. Before we wrap up, how do you felt about LOL Junction? Extremely professional. I loved it. Beforehand, your team member Yash, how he was planning things with my team, and very polite, very fun, and लगा ही नहीं कि पॉडकास्ट है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठ के कॉफी पी रही हूँ और शायद आप मेरे बचपन की दोस्त हो। That's a compliment. A beautiful experience. That's a Thank you. compliment. Thank you so much. I love you so much. I have to say this. And मैं जब भी दिल्ली आऊंगी, I have to meet you. अगर आप दिल्ली आए और मुझे मिले नहीं तो फिर दोस्ती खत्म। Take care, and we are going to come again with some exciting. Inshallah and Ameen. Thank Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you. Thank you so much. And God bless you all. Thank you so much. Thank you so much.